পার্শ্ববর্তী মসজিদের ইমাম সাহেব আছেন, তিনাদেরকে আমি এখানে আসার জন্য অনুরোধ জানাবো। নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার, নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার, নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার। আল কোরআনের আলো, ঘরে ঘরে জালো, আল কোরআনের আলো, ঘরে ঘরে জালো, আল কোরআনের আলো, ঘরে ঘরে জালো। নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার, নারায়ে তাকবীর। আল্লাহু আকবার। হাফেজ আরমান মল্লিক সাহেব, হাফেজ আরমান মল্লিক পিতা ইমতাজ আলী মল্লিক সাহেব, কাসন্ড জাড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর। তার মাথায় এখন দস্তারে ফজিলত হচ্ছে। আমাদের মৌলানা সাহার আলী সাহেব অনেক দূর থেকে এসেছেন, তিনি প্রথম পাগড়ি পরিধান করাচ্ছেন। হাফেজ আরমান মল্লিক, নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার, নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার, নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার। আল কোরআনের আলো, ঘরে ঘরে জালো, আল কোরআনের আলো, ঘরে ঘরে জালো। নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার। ধরো ধরো, একজন নিয়ে যাও, চলে যাও। দ্বিতীয় হাফেজ তহিদুল ইসলাম মল্লিক, পিতা হেদায়েতুল মল্লিক, কাসন্ড জাড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর। হাজি মহসিন সাহেবকে অনুরোধ জানাবো আপনি সামনে আসবেন এবং ছেলের মাথায় নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার, নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার। আল কোরআনের আলো, ঘরে ঘরে জালো, আল কোরআনের আলো, ঘরে ঘরে জালো। মাদ্রাসা দারুল উলুম টাপুরিয়া জিন্দাবাদ, মাদ্রাসা দারুল উলুম টাপুরিয়া জিন্দাবাদ। ভাই আপনারাও একটু আওয়াজ তুলুন। তৃতীয় হাফেজ শেখ ইনজিমাম আলী, পিতা শেখ আমির আলী সাহেব, বাজুয়াড়া, মুগবাসান, পশ্চিম মেদিনীপুর। আমাদের মুফতি আজিজুর রহমান সাহেবকে আমি অনুরোধ জানাবো উনি আসবেন এবং দস্তারে ফজিলত ছেলের মাথায় পরিধান করাবেন। উনার আব্বাও আছেন, আমির আলী ভাই সামনে আসুন। নারায়ে তাকবীর, নারায়ে তাকবীর। সবাই হাত লাগান, খাস করে শিক্ষক মহাশয়দেরকে অনুরোধ জানাবো ওনারাও হাত লাগাবেন। নারায়ে তাকবীর, আল কোরআনের আলো, আল কোরআনের আলো, মাদ্রাসা দারুল উলুম টাপুরিয়া। এখন আপনাদের সামনে আমাদের মাদ্রাসার ছাত্র তৌফিক আলম কিছুক্ষণ বক্তব্য রাখছে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা খাতামিল আম্বিয়া'i ওয়াল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন। أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. हमने हर दौर में तक़दीस रिसालत के लिए, हमने हर दौर में तक़दीस रिसालत के लिए वक्त की तेज़ हवाओं से बगावत की है।
तोड़ कर सिलसिला रस्म सियासत का फसू, तोड़ कर सिलसिला रस्म सियासत का फसू, एक फ़क़द नाम मोहम्मद से मोहब्बत की है। सदर महतरम स्टेज पर रौनक अफरोज़ बुजुर्गाने दीन, अजीज़ दोस्तों, आज मैं आप हजरात के सामने ख़त्म नबूवत और इश्क़ रसूल की मुताल्लिक़ कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। सबसे पहले यह बात समझनी है कि जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह पर ईमान लाना ज़रूरी है, वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान लाना ज़रूरी है। जैसे अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, उसी तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं, क्योंकि अल्लाह ने ऐलान कर दिया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं। खत्म नबूवत की ज़बानी ऐलान हो गया अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी, कि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं। अगर कोई आदमी सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पर ईमान लाए, खुदा की खुदाई तस्लीम करे, मगर नाऊज़ बिल्लाह मुस्तफ़ा के मुस्तफ़ाई का इनकार करे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने को ना माने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान ना लाए, तो शख्स काफिर और मुर्तद है। अजीज दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हयात मुबारका के आखिरी दौर ही में झूठे मुद्दईयान नबूवत ने जन्म लिया। मुसैलमा कद्दाब ने अपनी झूठी नबूवत का ऐलान किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके खात्मा के लिए सहाबा के मुक़द्दस एक जमात का लश्कर तैयार किया, लेकिन वक्त नसद ना दिया, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए। मुसलमान विसल नवाबी के गम से निडालते, तरह तरह के फितने खड़े हो गए, हालात इंतहाई नाजुक थे और यारे गौर ने ऐसे खतरनाक हालत की बिल्कुल परवाह ना की। मुसैलमा कद्दाब की सरगोबी के लिए पहला लश्कर भेजा, लेकिन उसने शिकस्त दे दी। दूसरा लश्कर हजरत इकरमा बिन अबू जहल के क़यादत में रवाना किया, लेकिन मुसैलमा कद्दाब की फौज ने उस लश्कर को भी शिकस्त दे दी। फिर क्या था, हजरत खालिद बिन वलीद सलर बनाकर भेजे जाते हैं, दोनों तरफ से गुमसान की लड़ाई होती है, आखिरकार मुसलमानों को भी फतह हासिल होता है और मुसैलमा कद्दाब पर दर्दनाक हमला होता है। फिर वो कत्ल कर दिया जाता है और उसको जहन्नम रशीद कर दिया जाता है और उसकी झूठी नबूवत भी मैदान यमामा में हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाती है। सामिईन किराम, आइए मैं आप हजरत को तारीख के आईने में ये भी दिखाता चलूँ कि गुस्ताखाने रसूल का कितना बुरा अंजाम होता है। अबू लहब ने जब मेरे आका की शान में गुस्ताखी की तो कुरान ने ऐलान कर दिया तब्बत यदा अबी लहब व तब। अबू लहब कमबख्त ने जब मेरे आका को बुरा भला कहा तो जंगे बदल में दिल्लत के मौत मरा। दो नन्हे बच्चे के हाथों मौत का घाट उतर दिया गया। उतबा शैबा ने जब मेरे आका को बुरा भला कहा तो जंगे बदल में दिल्लत के मौत मरा। सुरक़ा ने जब मेरे नबी का ताक़ुफ़ किया तो सवारी के साथ जमीन में धंसा दिया गया। क़ादियानियों में मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी ने जब मेरे आका की शान में गुस्ताखी की और झूठे नबूवत का दावा किया तो अल्लाह ने उसे बैतुल खला में दिल्लत के मौत मार दी। जब भी दुश्मनों ने तान और तस्रीह की तो कुरान ने कहा इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, यकीनन आपके दुश्मन ही कमीने और ज़लील है। मिल्लत इस्लामिया के पासबानों, तारीख के औरों और उश्या के रसूल की बेशुमार औक़ात से बड़े पड़े, जिन्होंने तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के खातिर अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। हाँ, मुझे क्या मिल्लत इस्लामिया के पासबानों, तारीख के औरों और उश्या के रसूल की बेशुमार औक़ात से बड़े पड़े हैं, जिन्होंने तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के खातिर अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। हाँ, मुझे ये भी बताते चलूँ कि 1929 ईस्वी की बात है, राजपन्ना में एक बदबख्त खबीस ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान करीमी में गुस्ताखिया करते हुए एक किताब रंगीला रसूल लिखी, जिनकी वजह से आशिक़ाना ख़त्मुल अंबिया के सीनों में इश्क़ रसूल की चिंगारियाँ शोला बनकर उभरने लगे और दिल तरफने लगे। मुसलमानों में बेचैनी फैल गई। ऐसे में एक आशिक़ रसूल जिनको खुशकिस्मती पर आसमान और ज़मीन भी रश करे तो गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जाने जाते हैं।
गाज़ी इल्मुद्दीन ने अपने महबूब की मोहब्बत में तरफ उठते हैं और अल्लाह से मदद मांगते हैं और उसको जहन्नम नशीद करने के वास्ते चल देते हैं। उसकी मकाम पर पहुंचकर राजपाल की बारे में पूछते हैं कि वो कहाँ है। राजपाल गद्दी पर बैठा हुआ था। उसने कहा मैं ही राजपाल हूँ, मगर फिर फौरन सहम गया, खौफ से पूछने लगा क्या काम है। तो गाज़ी इल्मुद्दीन छुरी का एक भरपूर वार किया और ये कहते हुए कि बस यही काम था। उस बदबख्त को हमेशा के लिए जहन्नम नशीद कर दिया। और गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह शहादत का मकाम पाकर दुनिया वालों से कह गया, दुनिया से दिल लगा के तुझे क्या मिला सिर, दुनिया से दिल लगा के तुझे क्या मिला सिर। अब इश्क मुस्तफ़ा में भी जान देकर देखिए कि मोहम्मद से वफा तूने, कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं जहाँ क्या चीज़ है, लौहे कलम तेरे हैं। मिल्लत इस्लामिया के दरख्त दिलो जंग यमामा की शुहदा की मुक़द्दस रूहों से ये आवाज़ आ रही है, मदीने की गलियों से ये निदा आ रही है, मस्जिद नवाबी की दौर दवार तुम्हें आवाज़ दे रही है, उम्मत खज़रा की पुरगाइफ मनारे तुम्हें पुकार कर कह रही है। ख़त्म नबूवत पर अपनी जानों को निछावर करने वाले आशिक़ान मुस्तफ़ा की पाकिज़ा रूहें सदा लगा रही है। मिल्लत इस्लामिया के नौजवानों, खालिदिन वलीद के फर्जिंदों, सहाबा को हक़ मानने वालों, मोहम्मद बिन क़ासिम के पैरोकारों, सलाहुद्दीन अय्यूबी का हमनशीनों, महमूद गज़नवी के मुक़्तदियों, उठो अपने अंदर ईमानी जज्बा पैदा करो, आपके सीनों में इश्क़ रसूल की चिंगारियाँ जलाओ, अपने आका की ख़त्म नबूवत की हिफाजत करो और ये ऐलान कर दो कि ख़त्म नबूवत के लिए अपना तन मन धन लुटा देंगे, ज़रूरत पड़ी तो गर्दनें भी कटा देंगे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखियाँ बर्दाश्त नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। मैं इसी पर अपनी बात को एक शेर के साथ ख़त्म कर रहा हूँ। ये संग गिरा जो हाइल है, ये संग गिरा जो हाइल है, हम रास्ते से हटा कर दम लेंगे, हम फूल भी है तलवार भी है, बातिल को मिटा कर दम लेंगे इंशाअल्लाह। व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।